हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यूजीसी नेट लॉ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मार्च 2023 के आगे के सॉल्यूशन देखने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Which of the following cases are related to environmental protection? A. State of Odisha versus Rabindranath Dalai and other. B. Subhash Kumar versus State of Bihar and others. C. Almitra H. Patel and other versus Union of India. D. MC Mehta versus Union of India. E. Kashi Ram and others versus State of Rajasthan. हिंदी में है कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कौन से वाद है। तो सही आंसर है बी, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट, अलमित्रा एच पटेल एंड MC मेहता। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट, a person shall not be member of state board constituted under the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981. Such person is or at any time has been adjudged insolvent. B. Has been declared by a competent court to be of unsound mind. C. Has been convicted of an offence under the Air Prevention and Control Pollution Act 1981. D. Has become above 65 years of age. E. Guilty of an offence involving moral turpitude. हिंदी में वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत गठित किए जाने वाले राज्य बोर्ड का सदस्य निम्नलिखित में कौन नहीं हो सकता? ए. वह व्यक्ति जो किसी भी समय न्याय निर्णित दिवालिया है या रहा है। बी. किसी सक्षम न्यायालय द्वारा जिसे विकृत चित्त का घोषित किया गया हो। सी. वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत किसी अपराध में दोष सिद्ध किया गया हो। डी. वह 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है। ई. वह नैतिक अधमता का दोषी रहा हो। तो राइट आंसर है A. Such person is or at the time has been adjudged insolvent. B. Has been declared by competent court to be unsound mind. C. Convicted of an offence under the Air Pollution Act. And last is E. Guilt of an offence involving moral turpitude. The right option is option 3rd. Next. Who among the following persons have been member of National Green Tribunal? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय हरित अधिकरण के सदस्य रहे हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए जस्टिस ए सूर्यनारायण नायडू, सी जस्टिस सी वेंकटरमन्ना और ई जस्टिस प्रताप कुमार राय। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 2nd. नेक्स्ट, according to Professor H.L.A. Hart, law is union of primary and secondary rule. B. The idea of obligation is at the core of a rule. C. Law is the enterprise of subjecting human conduct to the governance of rule. D. The primary rules acquire the unity of a system through their union with secondary rules. हिंदी में है प्रोफेसर H.L.A. हार्ट के अनुसार ए विधि प्राथमिक एवं द्वितीयक नियमों का संगम है। बी. दायित्व का विचार किसी नियम के मूल में निहित होता है। सी. विधि मानवीय आचरण को विधि शासन व्यवस्था के अधीन लाने का साधन है। डी. प्राथमिक नियम द्वितीयक नियमों के सम्मेलन के माध्यम से किसी प्रणाली की एकता प्राप्त करते हैं। राइट आंसर, लॉ इज यूनियन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल। ए. B है the idea of obligation is at the core of rule, and D the primary rule acquire the unity of a system through. The right option है option 3rd. Sorry, option 3rd. Next,
Which of the following are correct in case of contract of bailment? A. The person who delivers the goods is called the bailee. B. If the bailee does any act which is inconsistent with the condition of bailment, the contract is void. C. Gratuitous bailment is terminated by death either of the bailer or the bailee. D. The bailee is bound to take care of goods bailed. E. Bailee has no general lien. उपनिधान संविदा के मामले में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? माल का परिधान करने वाले व्यक्ति को उपनिहिती कहा जाता है। बी. यदि उपनिहिती कोई ऐसा कृत्य करता है जो उपनिधान के असंगत है तो संविदा शून्य हो जाती है। सी. अनुग्रहिक मतलब बिना प्रतिफल का उपनिधान उपनिहिती या उपनिधि की मृत्यु होने के परिणाम स्वरूप पर्यवसित हो जाता है। डी. उपनिहिती का कर्तव्य है कि वह उपनिधान किए गए माल का ध्यान रखे। और ई. उपनिहिती बैली का कोई सामान्य लियन मतलब धारणाधिकार नहीं होता है। राइट आंसर सी. gratuitous bailment is terminated by death either of bailer or bailee. And D. The bailee is bound to take care of goods bailed. The right option, option 4. Next. Every prospectus issued by or on behalf of a public company shall state the following information: a name and address of the register office of the company, details about underwriting of the issue, details of directors, details about trustee and their interest, and collateral object of the business. किसी सरकारी कंपनी द्वारा या उसकी ओर से उसकी ओर से जारी की गई प्रत्येक निर्देशिका में निम्नलिखित सूचना उल्लेखित होगी: कंपनी का रजिस्ट्रेशन नाम और पता, इशू को खरीदने का दावा करने वाले संबंधी विवरण, निदेशकों का विवरण, न्यासी और उनके हित संबंधी विवरण, और व्यवसाय के संपार्श्विक लक्ष्य। तो राइट आंसर है नेम एंड एड्रेस ऑफ रजिस्टर ऑफिस ए, बी है डिटेल ऑफ अंडर राइटर्स ऑफ इशू, और सी है डिटेल ऑफ डायरेक्टर्स। राइट ऑप्शन, ऑप्शन थर्ड। Which of the following are correct? A company may issue debenture with option to convert them to shares either wholly or partly at the time of redemption. B. Such issue has to be approved by a special resolution passed at general meeting. C. Debenture with voting rights can be issued. D. Secured debenture cannot be issued. E. The debenture trustee has to take steps to protect the interest of the debenture holder. कौन सा सही है? तो ए. कंपनी संपरिवर्तन के विकल्प सहित ऋण पत्र जारी कर सकती है। बी. इस तरह के इशू को आम सभा में विशेष संकल्प जारी कर अनुमोदित करना होता है। सी. मताधिकार सहित ऋण पत्र जारी किए जा सकते हैं। डी. प्रतिभूत ऋण पत्र जारी नहीं किए जा सकते। ई. ऋण पत्र धारकों के हितों के संरक्षण हेतु ऋण पत्र न्यासी को कदम उठाना पड़ता है। राइट ऑप्शन ए, बी एंड ई। ऑप्शन है ऑप्शन 2। Which of the following are correct? Fraud means and includes the suggestion as a fact of that which is not true by one who does not believe it to be true, the passive concealment of a fact. C. A promise made without any intention of performing it. D. Any other act fitted to deceive. E. Any such thing which the law declares as misrepresentation. तो कपट से अभिप्रेत सम्मिलित करता है जो बात सत्य नहीं है उसका तथ्य के रूप में उस व्यक्ति द्वारा सुझाया जो जाना जो विश्वास नहीं करता है कि वह सत्य है। बी. निष्क्रिय रूप से तथ्य का छिपाना, कोई वचन जो उसका पालन करने के आशय के बिना दिया गया हो। डी. प्रवंचना करने योग्य कोई अन्य कार्य। ई. कुछ ऐसी चीजें जिसे विधि द्वारा दुरुपदेशन के रूप में घोषित किया गया है। तो राइट आंसर है हमारा ए, the suggestion as a fact of which is not true, and C,
the promise made without intention of performing it, and D, any other act fitted to deceive. The right option is A. Next, which among the following are the opinion of Professor Dicey about rule of law? A. There should be an absence of discretionary power because it makes room for arbitrariness. B. A person should suffer only for breach of law. C. Right must flow from customs and traditions recognized by court. D. There was administrative law in England. E. Dicey considered that special administrative court in France reflected rule of law. विधि शासन के संदर्भ में प्रोफेसर डाइसी के मत निम्नलिखित में से कौन से हैं? ए. विवेकाधीन शक्तियां नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि इससे स्वेच्छाचारिता को बढ़ावा मिलता है। बी. किसी व्यक्ति को केवल विधि के उल्लंघन हेतु दायी माना जाएगा। सी. अधिकारों को न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त प्रथाओं और परंपराओं से गुजरना चाहिए। डी. इंग्लैंड में प्रशासनिक कानून था। ई. डाइसी का मत था कि फ्रांस के विशेष प्रशासनिक न्यायालय विधि शासन को प्रतिबिंबित करते थे। राइट ऑप्शन है ए बी सी। ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट, which of the following is correct about the protected system under the Information Technology Act 2000? A national nodal agency may declare any computer resources as the protected system. Central government prescribe the information security practices and procedure for protected system. C. Protected system relates to the protection of the facilities of critical information infrastructure. D. Indian Computer Emergency Response Team has the overall responsibility for taking all measures for protection of protected system. हिंदी में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत संरक्षित प्रणाली के बारे में निम्न में से क्या सही है? ए. राष्ट्रीय नोडल अभिकरण किसी कंप्यूटर संसाधन को संरक्षित प्रणाली के रूप में घोषित कर सकता है। बी. केंद्र सरकार संरक्षित प्रणाली के लिए सूचना सुरक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं को विहित करती है। सी. संरक्षित प्रणाली अति महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुविधाओं के संरक्षण हेतु संबंधित है। डी. भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल के पास संरक्षित प्रणाली के संरक्षण के लिए समस्त उपाय करने की समग्र जिम्मेदारी है। राइट आंसर है बी एंड सी। Central government prescribe the information security practice and procedure. Protected system C है protected system relate to the protection of the facility of critical information infrastructure. The right option, option second. Who among the following are public servant as expressly given under section 21 of Indian Penal Code 1860? Every commissioned officer of defense service. B. Every judge. Every officer of government. D. Chairman trustee of private trust. E. President of political parties. आईपीसी की धारा 21 के अंतर्गत किसे लोक सेवक बताया? तो रक्षा सेवा का प्रत्येक कमीशन अधिकारी, न्यायाधीश, सरकार का प्रत्येक अधिकारी, प्राइवेट न्यास के अध्यक्ष न्यासी, राजनीतिक दल का अध्यक्ष। राइट आंसर है ए. एवरी कमीशन ऑफिसर और ऑफ डिफेंस सर्विस, एवरी जज, एंड सी. एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन 4. Following are the essential elements of theft under the Indian Penal Code 1860. A. Dishonest intention. B. The property should be taken out of possession of any person without that person consent. C. The person having possession must be the owner of the such property. D. Property must be movable. E. Taking away of property should be permanent. आईपीसी के अधीन चोरी के अपराध के निर्माण हेतु आवश्यक तत्व बेईमानीपूर्ण आशय, किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे से संपत्ति ली जानी चाहिए, उस व्यक्ति की संपत्ति के बिना,
सी कब्जाधारी व्यक्ति इस तरह की संपत्ति का स्वामी होना चाहिए। डी संपत्ति चल संपत्ति के रूप में होना चाहिए। ई संपत्ति का लिया जाना स्थायी होना चाहिए। राइट ऑप्शन dishonest intention, the property should be taken out of possession of any person without person consent, and D property must be movable. The right option A. Following are generally the essential elements of crime: mens rea, actus reus, motive, injury, human being. अपराध के सामान्यतः आवश्यक अवयव है आपराधिक मनस्थिति, आपराधिक कृत्य, हेतु, क्षति, मानव प्राणी. तो ऑप्शन है राइट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड ए, बी, डी एंड ई. Which of the following provisions have been inserted in the IPC through the Criminal Law Amendment Act 2013? दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 के माध्यम से भारतीय दंड संहिता में निम्नलिखित उपबंध अंतर्स्थापित किए गए. राइट आंसर है ऑप्शन 4 मीन्स 326A, 326B, 166A एंड 166B. Which of the following statements are correct? Negligence is the breach of legal duty towards the other caused by omission. B. Actionable negligence consists in the neglect of use of ordinary care towards a person to whom he owes the duties. C. Negligence is breach of legal duty to take care which result is damage. D. There is no difference between civil and criminal negligence. E. The offence of death by negligence under IPC was amended in 2013. हिंदी में है उपेक्षा किसी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपेक्षा किसी अन्य के प्रति विधिक कर्तव्य का उल्लंघन है जो लोभ के कारण हुआ है. बी. अनुज्ञ उपेक्षा किसी ऐसे व्यक्ति जिसके लिए आपका कर्तव्य हो के प्रति सामान्य देख रेख के प्रयोग की उपेक्षा है. सी. उपेक्षा सावधानी बरतने के विधिक कर्तव्य का उल्लंघन है जिसके परिणाम स्वरूप क्षति होती है. डी. दीवानी और आपराधिक उपेक्षा के बीच कोई अंतर नहीं है. और ई. आईपीसी में प्रावधानित उपेक्षा द्वारा मृत्यु को 2013 में संशोधित किया गया. राइट ऑप्शन ए. negligence is the breach of legal duty. B. actionable negligence consists in the neglect of the use of ordinary care. और C. negligence is breach of legal duty. The right option is option third. Article 38 of the Statute of International Court of Justice enumerate which of the following as sources of international law. A. All international conventions, international custom as evidence of a general practice accepted as a law. C. The general principle of law recognized by the United Nations, the general principle of law recognized by civilized nation. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 38 में निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्रोत बताया गया है? सभी अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, अंतर्राष्ट्रीय रूढ़ियां जो कानून के रूप में स्वीकृत सामान्य प्रथा का साक्ष्य रूप हो. सी. संयुक्त राष्ट्र द्वारा सामान्य मान्यता प्राप्त कानून के सामान्य सिद्धांत. डी. सभ्य राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त कानून के सामान्य सिद्धांत. राइट ऑप्शन बी. इंटरनेशनल कस्टम एंड डी. जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड. The right option is option second. Which of the statement is correct? A quasi-judicial body may never review its own decision. It
there is a grave error of law in it. B. A quasi judicial body may review it on decision if there is grave error of law in it. C. A quasi-judicial body has inherent power to review its own decision. D. A quasi-judicial body has power to issue writ. कौन सा कथन सही है? ए. कोई अर्ध न्यायिक निकाय अपने स्वयं के निर्णय की कभी समीक्षा नहीं कर सकेगा यदि उसमें विधि की गंभीर त्रुटि हो. बी. कोई अर्ध न्यायिक निकाय अपने स्वयं के निर्णय की समीक्षा कर सकेगा यदि उसमें विधि की गंभीर त्रुटि हो. सी. किसी अर्ध न्यायिक निकाय के पास अपने स्वयं के निर्णयों की समीक्षा करने की अंतर्निहित शक्ति है. डी. किसी अर्ध न्यायिक निकाय के पास रिट जारी करने की शक्ति है. राइट ऑप्शन. राइट ऑप्शन इज ए. A quasi-judicial body may never review its own decision. Option third. Next. Which of the following statement is correct? Dower is a consideration for the surrender of person by the wife. B. Dower is the technical Anglo-Mohammedan term of its equivalent meher in Arabic. C. Dower must be fixed at the marriage ceremony, otherwise marriage will be void. D. Where no dower is expressly fixed at the marriage ceremony, the law confirms the right of dower upon wife. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? डावर पत्नी द्वारा अपने आप को समर्पित किए जाने हेतु एक प्रतिफल है. डावर तकनीकी आंग्ल मुस्लिम शब्द है अरबी में जिसका समकक्ष शब्द मेहर है. मेहर को विवाह समारोह में तय किया जाना चाहिए अन्यथा विवाह शून्य हो जाएगा. जहाँ विवाह समारोह में कोई मेहर स्पष्ट रूप से तय नहीं किया जाता वहाँ विधि द्वारा मेहर का अधिकार पत्नी को प्रदान किया जाता है. राइट ऑप्शन. A. Dower is the consideration for the surrender of person. B and D. Right option is second. Which of the following statement is correct? According to Hindu Marriage Act, performance of Saptapadi before the scared fire is obligatory for marriage. B. Chanting of mantra is not necessary while performing Saptapadi. C. Saptapadi was customary ritual incorporated under the Hindu Marriage Act. D. In Hindu marriage, Kanyadan cannot be regarded essential. हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार पवित्र अग्नि के समक्ष सप्तपदी करना विवाह के लिए अनिवार्य है. बी. सप्तपदी करते समय मंत्रोच्चारण किया जाना ये वाला क्वेश्चन यूसीजी नेट ने ड्रॉप कर दिया था तो ये हम नहीं देख रहे हैं क्योंकि इसमें ऑप्शंस गलत है. Next, in which of the following cases the Supreme Court has held that while applying and interpreting the anti-defection law, the Speaker of Lok Sabha function as a tribunal? ये किस केस में बोला गया था? तो इसका राइट आंसर है कि होता होलोहान वर्सेस जाचिल्लू. ऑप्शन सी. इस केस में बोला था कि उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि दल बदल विरोधी कानून को लागू करने और उसकी व्याख्या करते समय लोकसभा अध्यक्ष एक न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करता है. ये इस केस में बताया गया था. नेक्स्ट है मैच द कॉलम है. तो सबसे पहले स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट. इसका राइट आंसर है सेक्शन 20 सेल ऑफ गुड्स एक्ट में दिया है. ये पहला. फिर ऑक्शन सेल बी का
फर्स्ट जो सेक्शन 64 में दिया है, रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी सेक्शन 59 एंड सेल बाय वन जॉइंट ऑनर सेक्शन 28. राइट ऑप्शन ऑप्शन 4. नेक्स्ट है मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड. तो पहला लिमिटेड पावर ऑफ द पार्लियामेंट. तो ये इंडिया में है. एक फिर रेसिडेंट पावर टू द स्टेट यूएस में. अनलिमिटेड पावर ऑफ द पार्लियामेंट यूके में. और कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल फ्रांस. तो राइट ऑप्शन ऑप्शन 4. नेक्स्ट, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. ये किस ईयर में एक्सेस हुआ था या रेटिफिकेशन हुआ था? तो ये ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट्स है जो किस ईयर में इसका एक्सेस किया गया था. तो पहले का है सेकेंड 1968. इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स. तो ये ईयर है 1979. फोर्स लेबर कन्वेंशन ऑप्शन फर्स्ट 1954. एंड कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड ऑप्शन 4 1992. राइट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड. नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन से है शेड्यूल पार्ट 9B. तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है. पार्ट 14A ट्राइब्यूनल. पार्ट 8 यूनियन टेरिटरीज. और डी का पार्ट 17 है कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो ऑप्शन थर्ड इज राइट. नेक्स्ट ऑप्शन, रोज एंड फ्रैंक कंपनी वर्सेस क्रॉम्पटन एंड ब्रदर्स लिमिटेड. तो इसमें जो लेट डाउन हुआ था इंटरनेशनल टू इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. इस केस में ये प्रिंसिपल लेट डाउन हुआ था. नेक्स्ट है हैरी वर्सेस निकरसन. इस केस में जो लेट डाउन हुआ था इनविटेशन टू ऑफर ऑप्शन 4. एंड ओली वर्सेस मालब्रू कोर्ट लिमिटेड. इसमें जो प्रिंसिपल होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल लेट डाउन था. पॉवेल वर्सेस ली. इसमें जो हुआ था लेट डाउन एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय द एक्सेप्टर. ऑप्शन सेकेंड इज राइट.
नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन भी यूजीसी नेट ने ड्रॉप कर दिया था, तो इसे हम नहीं देखेंगे। नेक्स्ट, कस्टम्स हिस्टोरिकल स्कूल में आता है। पोस्ट मास्टर जनरल, कॉरपोरेशन सोल, एरिस्टल डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, हॉफेल्ड ज्यूरल रिलेशंस। द राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड। एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डेवलपमेंट एनसीटी दिल्ली। इस केस में जो प्रिंसिपल लेट डाउन हुआ था, ऑल वुमेन वेदर मैरिड एंड अनमैरिड आर इंटाइटल्ड टू सेफ एंड लीगल एबॉर्शन। तो ऑप्शन सेकेंड। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मेसर्स मोहित मिनरल्स थ्रू डायरेक्टर। इस केस में प्रिंसिपल लेट डाउन था अनकोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ऑप्शन फोर। सहारा इंडिया रियल एस्टेट लिमिटेड वर्सेस सेबी। ये केस जो इसमें प्रिंसिपल लेट डाउन हुआ था, पोस्टपोनमेंट ऑफ पब्लिकेशन। एंड लास्ट एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें कोलैबोरेटिव फेडरल स्ट्रक्चर। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट, यह एक्ट 1867 में बना था। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 19 में 1900 में। यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन 1787 एंड यूके बिल ऑफ राइट्स 1689। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड। है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये आर्टिकल 51 में दिया है। कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 77। सीनियर एड्रेस, स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर, आर्टिकल 176। एंड लैंग्वेज टू बी यूज इन द लिटरेचर, आर्टिकल 210। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग केसेस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ओल्ड टू न्यू में हमें इसको अरेंज करना है। ए सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन, बी नवजोत तेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सी नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, और डी अंकित वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। तो सबसे पहले जो आया है नाज फाउंडेशन, सबसे पहले नाज फाउंडेशन है हमारा फर्स्ट पे। सेकंड पे है सुरेश कुमार कौशल, थर्ड नवतेज सिंह जौहर, और फोर्थ पे है अंकित वर्सेस स्टेट हरियाणा। द राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड।